very scoring questions on a crystal field theory, where a weak ligand or a strong field ligand, while approaching a central metal atom or ion, then degeneracy will get split into two different energy level. Is that T2G, that is a low in energy, and EG, that सब एनर्जी जो हमारे लेवल्स है दैट विल हाई इन एनर्जी. सो यहाँ पे क्वेश्चन है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे है, दैट इज यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम. मीन्स हमें इनका जो डिजेनरेसी है, जो डिजेनरेट है, वी हैव टू बी ड्रॉ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस लिगेंड्स विल अप्रोच एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and determine the magnetic moment of the coordination complexes. तो हमें यहाँ पे इसका magnetic moment भी find out करना है. So using CFT, हम सभी में CFT, so CFT को use करेंगे, means crystal field theory हम use करेंगे सभी के लिए. crystal field theory, crystal field theory में क्या होता है, जो हमारा degenerate है और d orbital है, it will get split into two energy level. For octahedral complexes, the two suborbital will high in energy and the three are low in energy. These are known as T2G and these two are known as EG, and this is called crystal field splitting energy for octahedral. यहाँ पे दिस इज द degenerate and dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. When ligand will approach, on the approaching of a ligand, what will happen? These जो सब orbital है, they will get divided into two different energy levels. तो यहाँ पे ये डीजेनरेट जो है स्प्लिट हो गया ऑन द अप्रोच ऑफ अ लिगेंड. नाउ हमारे पास तीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस या आइडेंटिटीज हमें प्रोवाइडेड है. वी हैव टू बी राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and then we have to determine the magnetic moment. Means this question can be asked either in a 3 marks, means section C, or a section E will cover. So यहाँ पे सभी में अगर देखें जो कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटीज हैं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और ये जो इनमें सभी में जो आयरन है दैट इज द सेंट्रल मेटल आयन और एटम. तो we can start one by one, and while we are writing electronic configuration for each complex we can get a half marks. While we writing its magnetic moment we will get a half marks. Overall हाँ 1 marks, 1 marks and 1 marks, 3 mark क्वेश्चन यहाँ पे है. सो एक हमने यहाँ पे सॉरी ड्रॉ एनर्जी लेवल भी ड्रॉ करना है. सो आइदर दिस क्वेश्चन कैन बी इन 5 marks, वी कैन गेट अ यहाँ पे 1 mark आपको एनर्जी लेवल के लिए मिल रहा है, देन यू कैन गेट अ half marks for electronic configuration and half marks for the magnetic moment. Then see the pattern how they are dividing it. Either you can have this in a 5 marks or a 3. So first coordination जो identity या complex है that is the F, E and F6. जो चार्ज है इसके ऊपर that is the 3 minus. तो नेगेटिव हमारे पास एनायनिक आइडेंटिटी है. लेट फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द ऑक्सीडेशन नंबर हियर. सो जो हमारा फ्लोरीन है इट इज हैविंग अ -1, टोटल 6 एटम है, एंड आयरन हमें पता नहीं, लेट अज्यूम x. ओवरऑल चार्ज जो है दैट इज अ -3. सो x minus 6 equal to -3, which implies x equal to -3 plus 6 equal to +3. So in this coordination identity, iron is having oxidation state +3. तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज 26. ग्राउंड स्टेट और एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, दैट इज आर्गन 4s2 3d6. This is the electronic configuration for the iron at ground state or at atomic state. Here
द आयरन इज एट Fe3। आयरन किस कौन सी स्टेज पे अवेलेबल है? दैट आयरन इज एट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेज। सो व्हाट is the electronic configuration? Argon 4s0 3d5. This is the electronic configuration at +3 oxidation state. So the degenerate will have 5 जो इसके सब लेवल्स या सब ऑर्बिटल्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, d5 यहाँ पे है, this is d5। d में how many electrons are available there? d5। so यहाँ 5 electrons है, and as I said जो octahedral complexes है they will get splitting into two type of energy level। as हमारा फ्लाउरिन कैसे है? फ्लाउरिन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड ligand, and that is, let me draw a little bit straight। तो यहां पे इस तरह से हो जाएगा, दिस इज T2G and this one is Eg। F is fluorine is a weak field ligand, so means जो यहाँ पे स्प्लिटिंग है दैट इज नॉट अ वेरी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वी कैन से ये हमारा क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी है, एंड दिस इज लो एज कंपेयर टू पेयरिंग। तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड विल नॉट डू दी टू मच स्प्लिटिंग, या ज्यादा एनर्जी गैप नहीं आएगा। सो ये जो हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हाट दे विल डू, पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल फिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे आप? T2G3 and Eg2। this is the electronic configuration, this is the energy level diagram according to CFT, and it's a magnetic moment। So how we are writing the magnetic moment? Magnetic moment can be calculated by using the formula n multiply with n+2 and Bohr magneton unit है। Here n is the unpaired electron, n क्या है? That is the unpaired electrons, and how many unpaired electrons are here? That is 5। So magnetic moment is 5 plus 2, that is 5 into 7, and that is √35, and that is 5.9 Bohr magneton। क्योंकि अगर 36 होता तो 6 it is 1 less, तो we are having 5.9 Bohr magneton। तो यहाँ हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दी। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, तो यहाँ हमने बना दिया। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये यहाँ पे आयनिक स्टेज पे है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख दी T2G3 Eg2, एंड मैग्नेटिक मोमेंट भी हमने फाइंड आउट करना था, तो दैट इज 5.9 बोर मैग्नेटन फॉर दिस। ये कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए है? अगर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना था, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, जो ये आयन कॉम्प्लेक्स है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। हमारा लीगेंड कैसा है? लीगेंड इज अ वीक फील्ड लीगेंड, देन व्हाट विल हैपन? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, आउटर कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बनेंगे, तो वो हमें पूछा नहीं है, बट if the question will ask as a ligand is a weak field ligand, तो pairing will not occur, the high spin complexes will be formed। so let's do same for the next जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। so the next one is एनर्जी लेवल डायग्राम सभी के लिए सेम रहेगा, जो इस तरह से स्प्लिटिंग होगी क्योंकि सारे के सारे क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। so the second one is
यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है x, वाटर पे चार्ज 0 होता है 6, ओवरऑल चार्ज +2, x इक्वल टू +2। सो यहाँ जो आयरन है इट इज हैविंग अ ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। सो आयरन क्या है, आयरन एट ग्राउंड स्टेट वी विल हैव आर्गन 4s2 3d6 and Fe2 plus पे what you will get that is argon 4s0 3d6। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। तो इसका जब हम डीजेनरेट बनाएंगे, ये तो मैंने जर्नल बनाया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए। तो यहाँ अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं दैट इज हम यहाँ डीजेनरेट बना लेंगे, सब ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6। यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है इट इज हैविंग अ 6 नंबर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। और जो स्प्लिटिंग है ऑन द अप्रोच ऑफ वाटर आ गया, जो डिजेनरेसी है वो स्प्लिट हो गई इनटू 2 लेवल्स दैट इज Eg और ये T2G में। तो यहाँ हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरह से लिख देंगे। ये 6 इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फील्ड किया ऑफ वाउ एंड हंट रूल एंड देन वी आर हैविंग द पेयरिंग। यहाँ पे 6 आ गए। एज वाटर कैसा है, water is a weak field ligand। water भी कैसा है, weak field ligand है। what it will be do then क्या हो जाएगा, जो स्प्लिटिंग, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है that is crystal field splitting energy is less as compared to pairing। तो यहाँ पे पेयरिंग बाद में होगी, पहले सारे सिंगल फील्ड हो जाएंगे क्योंकि जो दो एनर्जी लेवल है उनमें ज्यादा गैप क्रिएट नहीं होगा। तो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल फिल द सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, हमने 5 सिंगल फिल कर दिए और 6th विल जो यहाँ पे आ जाएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, जिसमें D6 है दैट इज T2G4 and Eg2। This is the electronic configuration where water is a ligand and iron is present at second oxidation state। And energy level diagram हो गया, electronic configuration हो गई। Now we have to find out the magnetic moment। So for magnetic moment what we will do, magnetic moment find out करनी है, तो वो हम find out कर सकते हैं रूट n+2 एंड यहाँ पे n कितना है, दैट इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी अगर मैंने इसके पहले वाले जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया था उसमें जो n लिखा है वो 5 है क्योंकि वहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मेंशन करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ 4 ही है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देन n क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 4 एंड 4 + 2 दैट इज 4 × 6 एंड विच इज इक्वल टू 24। अगर 25 होता तो 5 हमारा रूट भी बाहर आ जाता, then what we will have that is 4.9 बोर मैग्नेटन। तो जो सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है दैट इज 1, उसके लिए हमने ये एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप इसे इस तरह से हाईलाइट करके शो कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया आपने D6 की, एंड देन वी हैव फाउंड द मैग्नेटिक मोमेंट। सो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स का भी जो भी पूछा था सब कुछ ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है दैट इज दी, वो भी आयरन का ही कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज, ये मैंने जर्नल बनाया है सभी के लिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ऐसी होती है कि जब लिगेंड आता है तो डीजेनरेट स्प्लिट हो जाता है। अब हम इसके लिए जो थर्ड वाला है उसमें हम थर्ड जो कोऑर्डिनेशन हमें कॉम्प्लेक्स दिया है दैट इज दी, वो भी आयरन का ही है, FeCN6 एंड 4-।
यहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेंगे पहले। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर, एंड लेट अज्यूम x फॉर आयरन प्लस साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, 6 टोटल एटम है, ओवरऑल चार्ज -4 है, x इक्वल टू -4 प्लस 6 एंड x इक्वल टू +2। तो यहाँ पर भी जो हमारा आयरन है दैट इज अवेलेबल एट सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेज। तो सेम अभी मैंने जैसे लिखा Fe, ग्राउंड स्टेट पे क्या है 26 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो आर्गन 4s2 3d6 ग्राउंड स्टेट पे है, और एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है Fe2+ आयनिक स्टेज पे क्या हो जाएगा आर्गन 4s0 3d6। अब तो ये एक्साइटेड स्टेट पे हमने लिख दिया है, या मैंने यहाँ पे चार्ज डाल दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मींस जो डी है, डी इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, हम डी जनरेट में आपने 6 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं 2 3 4 5, ये डी जनरेट है और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ है 1 2 3 4 5 एंड 6th वन। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी ऑन द अप्रोच ऑफ अ लिगेंड, लिगेंड आ गया और स्प्लिटिंग हो गई। तो जो 2 सब ऑर्बिटल्स है वो ऊपर चले गए और 3 जो है लो इन एनर्जी वो यहाँ रह गए, दे आर नोन एज T2G एंड EG। तो यहाँ जो CN है साइनाइड जो है इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। व्हाट विल डू, जो एनर्जी स्प्लिटिंग हो रही है दैट इज वेरी हाई, सो हियर एनर्जी हाई एज कंपेयर टू पेयरिंग। तो पेयरिंग हो जाएगी पहले, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे, क्योंकि साइनाइड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ज्यादा जो हमारा गैप होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई D6 के लिए दैट इज T2G6 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 0। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर Fe2+, ये उस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। एंड यहाँ पे क्योंकि साइनाइड जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ से बन जाएंगे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती तो D2sp3, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों अभी खाली है। देन अभी हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, N 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स तो है बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, N इक्वल टू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटन, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से हमने ये जो थर्ड हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ दिया हुआ है, हमने उसके लिए भी पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, फिर हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 6 और 6 इलेक्ट्रॉन्स थे ऑन द अप्रोच ऑफ अ लिगेंड, स्प्लिटिंग हो गई, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्प्लिटिंग हुई है एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज हाई, पेयरिंग विल अकर फर्स्ट, यहाँ मैंने कंडीशन मेंशन कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी है और बोर मैग्नेटन जो उसका वो 0 आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट है नहीं, और कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा आपका दैट इज अ डायमैग्नेटिक, will not show a magnetic moment because unpaired electrons are not present. So don't forget to subscribe my channel, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। See you in the next video soon.